you in this physics video, and in today's video I'm going to start over here that it is chapter 0 over there, which is of mathematic tool, because this is going to be used in now upcoming chapter. Therefore I'm going to start this mathematics tool. So over here let us to know that what is this function. ठीक है, फंक्शन क्या होता है. सो फॉर दिस आई एम गोइंग टू राइट दिस इज द इक्वेशन y is equal to 2x square plus x plus 1. Okay, I'm having this one equation. Now over here we are checking that if x is 1, then what will be the value of y. Therefore y is equal to so we will get that it is 2 plus 1 plus 1, and it is equal to that of 4. Okay, so y is equal to 4 when x is 1, and x is that 2, then this y will be, so we will get that it is 2 into 4 plus 2 plus 1, so it is 8 10 11. It is going to be 11 over there. And similarly over there, if I will put this x value is -1, therefore this y is equal to that of 2 minus of 1 plus 1, and which is equal to that of 2 only. Okay, so here we are looking that this value of y is going to depend on value of x. ठीक है, तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है. ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज that said to be, so over here y is said to be the function of x. Therefore that y is going to depend on x. So y is known as function of x. ठीक है, so what is over here this y, it is function of x. So thus over here this y it is going to be dependent, y is dependent while this x is independent. ओके, सो व्हाट इज मीन्ड बाय फंक्शन. फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो इसमें जो y की वैल्यू थी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, x के ऊपर डिपेंड कर रही थी. देयरफॉर y इज सेड टू बी द फंक्शन ऑफ x. ओके, एंड हाउ डू वी राइट इट एज, तो इसको लिखा जा सकता है दैट y इज फंक्शन ऑफ x. ठीक है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे y की वैल्यू जो हमारे पास चेंज होती है. ओके, सो दिस इज दैट function. Now this is the important part of this mathematics tool, that differentiation. So differentiation is going to be used in this physics. So whatever the important part, that is going to be discussed only. We are not going in the depth, because in mathematics you will complete it from the deep of that exercises. Okay, so over here for this differentiation, student, we must to know over here this situation. Let us to understand that I am having, this is a graph given, this is a graph, it is this side x-axis, here it is y-axis, and there is a straight line in this graph. Okay, so over here this straight line graph, what it indicate, so we are looking that it is at an angle with the x-axis. Okay, therefore this straight line it is said to be as slope. What this line is known as, this is known as slope. ठीक है, नाउ ओवर हियर इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, अगर इस पोजीशन के ऊपर हम बात करें स्लोप क्या होगी, सो वी विल टेक अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लेंगे, सो दिस स्लोप विल बी सेम, जैसी यहाँ पर थी वही यहाँ पर बनेगी. इफ आई वांट टू नो ओवर हियर हाउ मच इज द स्लोप एट दिस पॉइंट, सो टेक द पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, अगेन वी विल फाइंड दैट दिस स्लोप इज दैट दिस एंगल इज सेम. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, ये जो इस स्लोप के ऊपर जो एंगल है वो हर जगह क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है. ठीक है, तो इसलिए ये जो स्लोप है वो हमारे पास कांस्टेंट है. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास ग्राफ यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है. नाउ लेट अस टू सपोज ओवर हियर, यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि देयर आर द 2 पॉइंट्स इन दिस स्लोप. ठीक है, one point that I am going to consider over here, let its points are x1 and this y1. ठीक है, तो x एक्सिस के अंदर इसकी पोजीशन और y एक्सिस के अंदर इसकी पोजीशन जो है इस p के ऊपर, एंड द अनदर पॉइंट दैट इट इज ओवर हेयर, इट इज q. तो q की पोजीशन लेट इट बी x2
and this is in y axis, its position is y2. ठीक है. So now we want to find out how much is the slope. ठीक है, तो स्लोप हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं. सो व्हाट यू विल डू, देयर यू विल फाइंड दैट स्टूडेंट हाउ मच इज द दैट सेपरेशन. ये जो हमारे पास q है वो p से x एक्सिस में कितना दूर है. ठीक है, सो यू विल फाइंड ओवर है p की पोजीशन क्या है यहाँ पर x एक्सिस में x1, और इस q की पोजीशन क्या है x एक्सिस में, इट इज x2. ठीक है, सो ओवर हियर how much is the gap between these two position, so we can say that it is x2 minus x1. this is the gap over here. ठीक है, so therefore here I have taken this slope, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, तो ये क्या बन गई स्लोप. तो जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर है. ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट करनी है. ठीक है, स्लोप फाइंड आउट करनी है. सो ओवर हियर दिस इज थीटा, तो ये कितना आ गया ये वाली साइड मेरे पास, दिस इज गोइंग टू बी x2 माइनस ऑफ x1. ठीक है, एंड ओवर हियर जो y एक्सिस में इस p की पोजीशन क्या है, इट इज़ y1. ओरिजिन से ये कितना दूर है y1, और जो q है वो उस ओरिजिन से कितना ऊपर है, सो इट इज़ टेकन टू बी एज y2. ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है यहाँ पर y2 है. ओके, सो हाउ मच इज दैट सेपरेशन बिटवीन p एंड q. तो ये सेपरेशन कितनी आई p और q के बीच में, सो दिस इज y2 माइनस y1. ठीक है, now over here if I will write over here this y2 minus y1 upon में that of x2 minus of x1, so you will find over here ये हमारे पास कुछ इस तरह से ट्राइंगल बन रही थी. this is going to be the triangle, right angle triangle like this one. this is p point, here it is q point, this is angle theta, this is y2 minus y1, here it is x2 minus x1, एट दिस पॉइंट इट वॉज m. ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल के सामने क्या होती है, परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये कौन सी साइड थी, परपेंडिकुलर साइड थी, परपेंडिकुलर. ठीक है, और जो हमारे पास ये कौन सी साइड थी, इट वॉज बेस, एंड हेयर इट इज़ हाइपोटेनियस. राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें. ठीक है, सो वी आर गेटिंग दैट हेयर इट इज़ परपेंडिकुलर टू द बेस. ठीक है, परपेंडिकुलर टू द बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इट इज़ tan थीटा. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू स्लोप. ठीक है, सो हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द ग्राफ, सो इट इज विद द हेल्प ऑफ tan थीटा. सो वी आर गेटिंग दैट इट इज tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1, जो वर्टिकल डिस्टेंस था, अपॉन में दिस जो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन था उनके बीच में. सो दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, but this is the straight line graph, so we are looking over here this slope will be constant. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्लोप है ये क्या रहेगी, कांस्टेंट. क्यों कांस्टेंट, क्योंकि ये जो थीटा है वो हमारे पास सेम ही रहने वाला है, तो इसलिए ये जो स्लोप है वो कांस्टेंट है. व्हाट अबाउट दिस ग्राफ, अगर हम बात करते हैं इस ग्राफ के बारे में, जो एक कर्व ग्राफ होता है, लेट अस टू टेक ओवर हियर दिस इज अ कर्व्ड ग्राफ, दिस इज अ कर्व्ड ग्राफ. ठीक है, तो इस कर्व ग्राफ में हमारे पास दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, नाउ ओवर हियर जो कर्व ग्राफ है, इफ़ आई विल टेक अ टेंजेंट, अगर मैं बात करता हूँ इस जगह की. ठीक है, सो हाउ मच इज स्लोप, स्लोप की बात अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, सो टेंजेंट क्या होता है, जो ओनली एक पॉइंट पे टच करता है. ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर मैंने यहाँ पे स्लोप ड्रॉ किया, सो दिस इज दैट एंगल, लेट इट बी थीटा 1. इफ आई विल वांट टू फाइंड आउट दिस स्लोप एट पॉइंट क्यू, सो ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस वन. तो ये टेंजेंट यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, सो इट इज़ थीटा 2. सो वी आर लुकिंग ओवर हेयर कि इस कर्व ग्राफ के अंदर ये जो एंगल है वो फिक्स नहीं है, दिस इज नॉट फिक्स. ठीक है, सो वी कैन से ओवर हेयर जो हमारे पास स्लोप है इस कर्व ग्राफ में वो कैसी होती है, एक वेरिएबल होती है. ठीक है, जो चेंज करती रहती है. ठीक है, सो नाउ ओवर इन सच टाइप ऑफ ग्राफ, जो हमारे पास कर्व ग्राफ है, देन हाउ डू वी फाइंड आउट द स्लोप, तो स्लोप कैसे फाइंड आउट की जाएगी. सो टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व्ड ग्राफ, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट P. ये हमारे पास पॉइंट P बन गया, एंड इट्स पोजीशन इज गिवन एज, पोजीशन कोऑर्डिनेट इसके x1 y1, these are the position coordinate, and over here this is that another point which is q. तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट है हमारे पास, that it is x2 y2. ठीक है, नाउ इफ आई विल टेक अ स्लोप,
अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्लोप जो इन दोनों को ज्वाइन करती है, ठीक है, सो यू विल फाइंड ओवर हेयर, ये जो स्लोप है मेरे पास जो इन दोनों को ज्वाइन करती है वो क्या कर रही है, इस कर्व को कट कर रही है। बट वी ऑलरेडी सेड दैट जो स्लोप होती है वो क्या होती है, टेंजेंट होती है। टेंजेंट होने का मतलब है वो हमारे पास एक ही पॉइंट के ऊपर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो हेयर वी आर लुकिंग कि ये क्या कर रही है, इस कर्व को दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, एक पी के ऊपर एक क्यू के ऊपर, ठीक है। So therefore we have to consider this that point Q very close to that point P, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, here Q is very close to P, ठीक है। तो Q पॉइंट जो क्या हो जाएगा, उस P के बहुत क्लोज हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये हमारे पास, जैसे ये कर्व था, लेट अस टू ड्रॉ दिस वन, ये मेरे पास इस तरह से कर्व, ठीक है। नाउ ओवर हियर दिस इज P पॉइंट एंड इफ दिस Q विल बी वेरी क्लोज, ये Q अगर इसके बहुत क्लोजर हो जाता है, ठीक है, सो दैट टाइम जो टेंजेंट होगा, ठीक है, तो जो टेंजेंट है हमारे पास वो इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। सो दिस विल इंटरसेक्ट द कर्व, ठीक है। तो ये Q और P बहुत क्लोजर है, तो इसलिए ये ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है उसको इंटरसेक्ट करने वाला होता है, ठीक है। सो नाउ ओवर हियर जस्ट टू लुक, ये जो P पॉइंट था इसकी पोजीशन क्या थी यहाँ पर, इट वाज x1 इन x एक्सिस एंड दिस वाज y1 इन दैट वर्टिकल एक्सिस। और सिमिलरली जो हमारे पास Q था इसकी पोजीशन क्या थी यहाँ पर, दिस वाज x2, और जो वर्टिकल एक्सिस में थी इसकी पोजीशन दिस वाज y2, ठीक है। सो ओवर हियर जो मेरे पास स्लोप बनी यहाँ पर, स्लोप, ठीक है, तो इस तरह से ये छोटी सी स्लोप बनी यहाँ पर, दिस इज स्मॉलर स्लोप, इस तरह से ये एक स्मॉलर स्लोप बन रही है, ये P ये Q एंड लेट दिस पॉइंट इट इज M, ठीक है। तो ये स्मॉलर स्लोप जो है हमारे पास फॉर्म हो जाती है। सो ओवर हियर ये जो QM है, ठीक है, तो वर्टिकल कितनी लेंथ बनी इस QM की, सो इट इज़ टोटल लेंथ थी y2, और ये जो M की जो पोजीशन है वो कितने हैं, y1 है, तो इसलिए ये बन गई हमारे पास y2 माइनस y1, ठीक है। नाउ दिस स्लोप इट इज़ थीटा ओवर हियर एंड दिस हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कितनी है P और M के बीच की, सो इट इज़ इक्वल टू दिस सेपरेशन। तो ये सेपरेशन कितनी बनी, यहाँ से यहाँ तक की है x2 और इतनी सी सेपरेशन है x1, तो इसलिए ये सेपरेशन क्या बनी, x2 माइनस x1, सो देन इट इज़ x2 माइनस x1, ठीक है। सो दैट्स वी गेट ओवर देयर दैट जब भी स्लोप निकालनी है टेन थीटा फाइंड आउट कर लो। सो टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, okay, x2 minus x1. Now what we have considered in this case, that P is very close to that Q, P और Q एक दूसरे के क्लोजर हैं, तो इसका मतलब हो गया ये जो y2 और y1 के बीच का गैप है, ठीक है, दिस वन P और M के बीच का गैप और Q और M के बीच का, ठीक है। सो ओवर हियर y2 माइनस y1 किसके बीच का गैप है, Q और M के बीच में, ठीक है। सो दिस इज वेरी क्लोज, दिस टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज, तो इसलिए हमारे पास इनके बीच की जो सेपरेशन है ना वो बहुत छोटी ली जाएगी, तो इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा, dy, दिस इज अ स्मॉल सेपरेशन, सो इट इज सेड एज dy, एंड वाइल दिस x2 माइनस x1 ये हमारे पास बहुत छोटी हो जाएगी, इसको हम dx यूज करेंगे, ठीक है। सो ओवर देयर दैट वी गेट व्हेन P एंड Q आर वेरी क्लोज, तो उसकी उस वक्त जो उनके बीच की सेपरेशन है वो बहुत छोटी बन जाएगी, सो इट इज़ dy एंड dx, सो दे आर गोइंग टू अप्रोच नियरली जीरो, तो ये लगभग जीरो के मतलब कि अप्रोच करती है, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली जीरो, ठीक है, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगी, मतलब कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के क्लोजर्स इतने आ जाएंगे कि वो अप्रोच टू जीरो करते हैं, बट दे आर नॉट जीरो, ठीक है। सो दस वी गेट दैट this tan theta then it is equal to that y2 minus y1 it is said as dy, while this x2 minus x1 it is small change in this x axis, so this is dx, ठीक है। so it is what, it is slope of this curved graph, तो ये कर्व ग्राफ की स्लोप बनी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो y है, ठीक है,
so y it is that dependent variable. जो y है वो हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो दस वी गेट ओवर हियर दिस इज डी वाई अपॉन में डी एक्स, सो दिस इज नोन एज डेरिवेटिव। इसको क्या बोला गया है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो या और इसको रीड कैसे किया जाता है, सो दिस इज रेड एज दैट differentiation of y with respect to x। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो डिपेंडेंट है वो उस वेरिएबल x के साथ कैसे बदलता है। ठीक है, सो दिस इज सेड टू बी डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है, दैट इट इज डी वी बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स। सो इन केस ऑफ दिस कर्ड ग्राफ, दिस डी वाई बाई डी एक्स, ये जो स्लोप होती है, ठीक है, दिस स्लोप इज वेरिएबल। ये हमारे पास फिक्स नहीं होती, ये वेरिएबल है। ठीक है, so therefore whenever you have to find out this slope, then you have to consider the points that are very close to each other. Therefore how do we read this one, it is that of differentiation of y with respect to x, या फिर आप इसको लिख सकते हो that it is rate of change of y with respect to x। ठीक है, तो जो y है वो x की रिस्पेक्ट में कैसे चेंज करता है, सो दिस इज डिफरेंशिएशन। नाउ लेट अस टू लर्न ओवर हियर अबाउट द रूल्स। तो रूल्स की बात करते हैं। सो दिस रूल्स आर इम्पोर्टेंट, यू हैव टू लर्न दैम, अंडरस्टैंड दैम। तो कुछ एक रूल्स ऐसे भी हैं जिनको आपको डायरेक्टली लर्न ही करना है। ठीक है, सो लेट अस टू लुक ओवर हियर विच रूल्स आर यूज इन इट। Okay, so this is very first rule over here, that I'm having y is equal to c, y equal to c. Now over here this y, it is a function of x, it is the function of x, y is the function of x। Okay, so therefore y is what, it is dependent and x is a variable। Now there we said that y is constant, तो y जो है वो बदलता नहीं है। तो y if it is not going to change, then we can show this graph, and this is over here we are having this type of the graph, y is what, constant। अगर y constant है तो उसकी स्लोप क्या बनेगी, तो स्लोप मतलब कि tan थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, सो दस वी आर हैविंग ओवर हियर दिस दैट चेंज ऑफ रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट होता है देन इट इज जीरो। दिस इज माय फर्स्ट रूल। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको बात बोली जाए दैट y इज इक्वल टू 5, ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, कि x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो क्या बोला गया, फाइंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो देन यू हैव टू डू ओवर देयर, इट इज डी वाई बाई डी एक्स। डेरिवेटिव कैसे लिखा गया था, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, जिसकी रिस्पेक्ट में है वो नीचे और जिसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वो ऊपर। ठीक है, तो इसलिए स्मॉल चेंजेस हैं, डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस इज अ कांस्टेंट टर्म एंड दिस विल बी दैट यू कैन डू इट इन दिस वे, इट इज डी डी एक्स, वाई की जगह प्लेस कर दो इट्स वैल्यू, इट इज़ 5। सो 5 इज़ अ कांस्टेंट एंड यू विल गेट इट इज एज 0। ठीक है, नाउ द सेकेंड रूल ओवर हियर, इट इज y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। ठीक है, तो जो y है वो कितना है हमारे पास, x की पावर n। ठीक है, सो ओवर हियर हाउ दिस y विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो हियर इट इज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो यू कैन मेक इट एज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, so it is given by dv by dx, so is equal to, so how you can find such a situation, how you can solve such a situation, so the rule is there, bring the power to the front, so power is n, bring it to the front, and thereafter write the variable as it is, this is variable, subtract 1 from its power, here n minus 1,
Okay, and next step you can do that over here राइट दिस वेरिएबल विदाउट पावर। अब इसको विदाउट पावर आपने लिखना है, ठीक है, और किसकी रिस्पेक्ट में है, ये एक्स की रिस्पेक्ट में है, तो इसलिए ये डेरिवेटिव आपने बनाना है डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये तो दोनों टर्म सेम हो गई, इसलिए हमारे पास क्या बन जाता है, ये सिंपली एन एक्स एन की पावर -1 हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट अस टू लुक ओवर हियर, एग्जांपल के साथ इस सेकंड रूल को समझते हैं, ठीक है। सो वी आर गेटिंग दैट y इज इक्वल टू इट इज एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव जो है वो x की रिस्पेक्ट में निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो वी आर नोन ओवर देयर वेन एवर वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव, किसकी रिस्पेक्ट में है, x, और किसका फाइंड आउट करना है, y का, ठीक है। तो y इज द फंक्शन ऑफ x, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या है, x की पावर 2 है, ठीक है। नाउ जस्ट टू लुक ओवर हियर, इन्होंने क्या बोला था, अगर आपके पास कभी भी वेरिएबल की पावर आती है तो उस वक्त आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, ब्रिंग द पावर टू द फ्रंट, ठीक है, उसकी पावर को आगे लेके आओ। इसकी पावर कितनी है, 2, इसको आगे लिखा, ठीक है, इट इज 2। देयर आफ्टर दे सेड दैट कि उस वेरिएबल को एज इट इज लिख दो, तो वेरिएबल कौन सा है, एक्स, उसको वैसे लिखा, और उसकी पावर में से क्या करना है, एक कम करना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1, सो इट इज 2 - 1, तो 2 - 1 मीन्स 1, सिंपल टू से। thereafter that you will do the derivative of this variable without power, तो इसकी पावर हटा देनी है, फिर रिमूव कर देनी है, और फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो इट विल बी कैंसल्ड दैट वन केस एंड वी आर गेटिंग इट ओवर हेयर, इट इज 2x, ठीक है। तो कितना आ गया इसका डेरिवेटिव हमारे पास, इट इज 2x, ठीक है। तो जो डिफ्रेंशिएशन है ना, डिफ्रेंशिएशन से आप क्या करते हो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो, अदरवाइज जो कर्व ग्राफ है उसके ऊपर जो स्लोप है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए डिफ्रेंशिएशन का यूज़ किया जाता है। नाउ लेट अस टू टेक ओवर हियर, दिस इज द दैट ऑफ थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड रूल। So let us to suppose over here that y is equal to cx, we are given over here y is equal to cx, c का मतलब constant, x का मतलब variable, okay। So you have to find out its derivative, ठीक है, derivative with respect to x, ठीक है। So what you have to do, then write it as dy by dx which is equal to y की वैल्यू आप as it is रखोगे, it is cx, ठीक है, y is how much, it is cx। नाउ ओवर हेयर जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसलिए यू कैन डू वन थिंग, यू कैन ब्रिंग आउट दिस कांस्टेंट फ्रॉम दिस डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव से आप कांस्टेंट बाहर निकालोगे एंड इनसाइड ओनली विल रिमेन देयर एक्स, ठीक है, सी बाहर आ गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग ओवर देयर, हाउ मच, जस्ट टू चेक दिस वन, ये जो एक्स है इसकी पावर कितनी है एट प्रेजेंट में, 1, ठीक है। तो हमारे पास चेक इट आउट, इसकी पावर कितनी है, 1, ठीक है। तो अगर आप पावर मेथड यूज़ भी करते हो, ठीक है, तो पावर मेथड में क्या बोला था, पावर को आगे ले आओ, पावर में से उस वेरिएबल को लिखो और उसकी पावर में से एक कम कर दो, ठीक है, एंड देयर आफ्टर विदाउट पावर उसको डेरिवेटिव उसका फाइंड आउट कर लो। तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 मीन्स इट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या आया, 1 ही आया। सो देन सिंपली आई विल राइट इट एज दैट इट इज दैट ऑफ सी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, सिंपल सी बन गया। तो यहाँ पर क्या बताया गया, कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो कांस्टेंट आप बाहर निकाल लोगे। जैसे एग्जांपल के साथ बात करते हैं, हेयर y इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो ओवर हियर दैट यू विल फाइंड इट एज डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू है 5x का स्क्वेयर, ठीक है। सो दिस 5 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर लेके आओ एंड इनसाइड देयर विल बी ओनली x का स्क्वायर, ठीक है। नाउ ओवर हियर यू विल फाइंड दिस सिचुएशन, ये जो इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें ये क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर यानी कि x की पावर n, तो उस फार्मूले से इसको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो।
So we are getting that it is 5 and inside this you will write as x की पावर n को कैसे डिफरेंशिएट करते थे, पावर को आगे लेके आते हो, ठीक है. हाउ मच इज द पावर 2 और उसकी पावर से एक कम करोगे, सो दिस पावर विल बिकम 1. 2 minus 1 1, तो 1 I am not going to mention over here. And the next that it is over here, that differentiation of this variable without power. So numerator denominator are same, then we will get it as 10x. Okay, this is the answer which we are having. This is the instantaneous value. ये हमारे पास जो change of y with respect to x आ गया, ठीक है. Differentiation of y with respect to x is equal to 10x. Now the next rule over here, it is the fourth one, that if y is equal to exponential function and you have to find out its derivative with respect to x, ठीक है. So then it will be same as it is. What to do, one thing, इसको as it is लिखो, but thereafter next step there will be the differentiation of, ठीक है, उस पावर की डिफरेंशिएशन डालनी है, डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है. तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो गया, इसलिए क्या बच्चा क्या सिंपल ई एक्स हो गया. जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, y की वैल्यू जो है ना वो e की पावर एक्स स्क्वेयर मान लो, इस तरह से दी है, ठीक है. तो डिफरेंशिएशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू x, देन यू विल राइट इट इज e की पावर एक्स स्क्वेयर, ठीक है. फर्स्ट स्टेप तो यही बोला कि उसको एज इट इज लिख लो. देयर आफ्टर इन नेक्स्ट स्टेप इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स पावर, ठीक है. तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल लुक, ये क्या बना, एक्स की पावर एन मेथड है, ठीक है. तो एक्स की पावर एन की डिफरेंशिएशन कैसे लिखी जाती है, सो दिस इज सिंपली ओवर देयर कि पावर को आप क्या करें आगे लेके आए, उस वेरिएबल की पावर से एक कम कर दो तो 2 minus 1 1 आ जाएगा, इनटू दैट इट्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विदाउट पावर, ठीक है. तो विदाउट पावर तो कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास ये क्या आ गया, इट इज़ 2x e x की पावर 2, ठीक है. दिस इज दैट आंसर, ठीक है. सो दस वी गॉट ओवर हेयर, इट इज़ द फोर्थ रूल. नाउ द फिफ्थ रूल, जो फिफ्थ रूल है हमारे पास डिफरेंशिएशन का, दिस इज रिगार्डिंग टू इफ y इज इक्वल टू लॉगरिथम टू द बेस e ऑफ x, ठीक है. अगर हमारे पास बेस e है लॉग वैल्यू x की, तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे चेंज करेगा. सो वी विल गेट ओवर हेयर, इट इज इक्वल टू 1/x, सिंपली टू राइट इट इज ओवर देयर, इट इज 1/x. एंड सिक्स रूल विल बी देयर, दैट y इज इक्वल टू log, it is log to the base e of x. So that time we will have this differentiation. Then its differentiation, it is with respect to x, it will be 1/x log to the base e of a. Okay, this is the formula which is of the differentiation. Next, seventh, that rule which we are having, that if y is equal to ax, if y is equal to ax, then its differentiation with respect to x, it will be that of ax log to the base e a. Okay, this is over there, that differentiation. Okay, thus we have taken over here some of the examples, so which is regarding to the differentiation. Okay, so tomorrow's that more rules we are going to discuss. So thank you, do the practice of this. Thank you for watching this video.